वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएचएमसी डिप्टी कमिश्नर सर्कल 10 राजेंद्र रेड्डी का बयान। सर्कल 10 हल्का असेंबली बहादुरपुरा के वोटर्स को वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर या हज़फ कर दिए जाने पर घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएचएमसी डिप्टी कमिश्नर सर्कल 10 बहादुरपुरा ERO का बयान। इन्होंने तेलंगाना न्यूज़ टुडे के करस्पॉन्डेंट करीम खान से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से साल में 4 बार वोटर लिस्ट में अपडेट किया जाता है। इन्होंने बताया कि हल्का असेंबली बहादुरपुरे में 2,79,000 वोटर्स है। అందరికీ నమస్కారం। నేను ERO బహదూర్పుర కాన్స్టిట్యున్సీ మన బహదూర్పుర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 2,78,000 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు। మొత్తం 6 వార్డులు, దీంట్లో 261 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీనికి గాను మొత్తం ఇప్పటి వరకు 261 పోలింగ్ స్టేషన్లు 6 వార్డులలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అలాగే ఈసీఐ ప్రస్తుతం ఈ బహదూర్పుర నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఈసీఐ వారి నెట్వర్క్ బంద్ ఉంది కాబట్టి సర్వర్ బంద్ ఉన్నందువల్ల అది ఓపెన్ కాగానే మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా మీకు ఎలిజిబుల్ వయసు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎలిజిబుల్ అవుతారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా మీ యొక్క ఓటును రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు। దానికి గాను కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకున్న వారు ఫామ్ నెంబర్ 6 ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు। దానికి గాను ఆధార్ కార్డు, మీ యొక్క రెసిడెన్షియల్ ప్రూఫ్ను చూపిస్తూ అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది। అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఓటర్ లిస్టులో ఉండి మీ యొక్క దానికి సంబంధించిన 6B అంటే ఆధార్ కార్డు లింకేజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది। ఇది మ్యాండేటరీ కాదు, కాకపోతే మీకు చేయాలనుకున్న వాళ్ళు 6Bని ఆధార్ కార్డుని ఇచ్చి దానికి అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు మీ ఓటుకు। లేదు అన్నట్లయితే మీకు ఇష్టం లేదు ఆధార్ కార్డు అనుకున్నప్పుడు మీ దాంట్లో 11 ఇవ్వడం జరిగింది। 6 म्यूनसिपल वार्ड है और 261 पोलिंग स्टेशन हैं। इन्होंने कहा है कि जो 18 साल मुकम्मल कर चुके हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपना नाम फॉर्म 6 के ज़रिए इंदराज करा सकते हैं। इसके लिए एड्रेस प्रूफ देना होगा और ID प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह शामिल है। ఏదైనా ప్రూఫ్స్ చూపించుకోవాలని అని చెప్పారు। దాని ప్రకారంగా మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ, మీ సదరన్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఇవన్నీ కొన్ని ఉన్నాయి। వాటి ప్రకారంగా మీరు దాంట్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు। తర్వాత 7కి వచ్చేసి మీరు ఇక్కడి నుంచి కనుక మీ డిలీషన్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఫామ్ నెంబర్ 7 ఇచ్చినట్టయితే మీ పేరును తొలగించడం కానీ, మీ వాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినట్టయితే అటువంటి వారి యొక్క వివరాలను దాంట్లో నుంచి తొలగించాలనుకున్నప్పుడు ఫామ్ 7 ఇచ్చినట్టయితే తొలగించడం జరుగుతుంది। తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వేరే అడ్రస్కు మార్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా తప్పులు కనుక ఉన్నట్లయితే ఫామ్ 8 ద్వారా మీరు సరి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి మీరు దీన్ని మొత్తం ఆన్లైన్లో చేసుకునే విధానం ఉంది కాబట్టి మీరు ఆఫీస్ దాకా రాకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆన్లైన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు। తర్వాత ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు కూడా ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉంటారో గతంలో 2 సార్లు మాత్రమే క్యాంపెయినింగ్ చేసి నడిచేవి, కానీ ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరంలో 4 సార్లు క్యాంపెయినింగ్ డేస్ ఏర్పాటు చేసి వాటిలలో బూతులలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు కూర్చుంటారు। మీరు వాళ్ళకు మీ యొక్క ఫామ్స్ను వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయొచ్చు। సబ్మిట్ చేస్తే దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఓటును ఇవ్వడం జరుగుతుంది। इन्होंने कहा है कि साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या सर्कल 10 के दफ्तर पर दरख्वास्त दी जा सकती है। इस मौके पर मोहम्मद उमर अहमद ARO सर्कल 10, मसूद आर रहमान सुप्रिटेंडेंट सर्कल 10 भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे करस्पॉन्डेंट करीम खान की ये रिपोर्ट। मैं ARO बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 69 मैं ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं आप लोगों को एक इत्तला देना चाहता हूँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम के लिए
कि अभी हम लोग लास्ट टाइम जनवरी में स्पेशल कैंपेन हुआ था, दिसंबर में भी हुआ था बूथ लेवल के स्तर पर। अभी तो फिलवक्त तो इलेक्शन कमीशन से अभी तक तो लाइन बंद है फिलवक्त ऑनलाइन, अभी तो क्लोज़ है। अभी फ्यूचर में जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी अपने को इंस्ट्रक्शंस देगा तो ये ऑनलाइन फॉर्म्स डालने के लिए, एनरोलमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल के लिए बहादुरपुरा की आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो आप वोटर आईडी के लिए, एनरोलमेंट के लिए ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइन ये वोटर्स हेल्पलाइन के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिसमें फॉर्म 6 है न्यू एनरोलमेंट, जो भी 18 साल के हो गए हैं और जो भी 18 साल होने वाले हैं तो लोग ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 है डिलीशन के लिए है, जो भी डेथ हो जाते हैं जो भी है। और फॉर्म 8 जो है करेक्शन या माइग्रेशन, यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को जाते या उसमें कुछ वोटर आईडी में कुछ करेक्शन है तो आप लोग फॉर्म 8 डाल सकते हैं। और फॉर्म 6 भी एक है जो आधार को लिंक करना है। एवरी वोटर जो भी आप वोटर आईडी को आधार से लिंक करना चाहते हैं, फॉर्म 6 भी डालना चाहिए, डेट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो फॉर्म 6 भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ आप वोटर्स हेल्पलाइन के थ्रू डाल सकते हैं। और ये फॉर्म 6 के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जो भी पेपर्स लगाना है, फर्स्ट एक आधार कार्ड चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। अगर आधार पे जो एड्रेस है, अगर आपको उस पर ही वोटर आईडी होना है तो आपको एड्रेस प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड सफिशेंट है। अगर आधार का एड्रेस और आप जहाँ से जो एड्रेस पे अप्लाई कर रहे हैं वोटर आईडी, अगर वो डिफरेंट है तो आप कौन सा भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो फलाने जो एड्रेस का लेना चाह रहे हो वो एड्रेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए। और ये सब चीज़ जैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन के थ्रू। अब फिलवक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 261 पोलिंग बूथ्स है, जिस पे जब भी इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन से आते हैं तो हम लोग हर पीएस में बीएलओस को बिठाते हैं। वहाँ पर फॉर्म 6, 7, 6B और फॉर्म 8 अवेलेबल रहता है। अगर जब भी फ्यूचर में अब नेक्स्ट टाइम जब भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो हम लोग वहाँ पर पीएस पे बीएलओस को बिठाएंगे, आप वहाँ से फॉर्म लेकर अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड या नहीं तो आप वोटर हेल्पलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,78,000 वोटर्स एनरोल हो चुके हैं हम लोग करें, और टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है 261। और एज़ पर ECI इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पहले सिर्फ जनवरी में ओनली साल में एक वक्त ही एनरोलमेंट का चांस होता था। अभी ECI कुछ अमेंडमेंट कर उसको साल में 4 वक्त कर दिए। 4 वक्त कब है? 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है और 1 अक्टूबर है। तो ये 4 डेट्स फिर से बोलता हूँ, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो इसको भी आप न्यू एनरोलमेंट करवाना है। जो हैज़ अटेंड, जो भी 18 साल हो गए और होने वाले हैं एज ऑन डेट पे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ ECI मैं तमाम बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम से ख्वाहिश और गुजारिश करता हूँ कि जो भी अगर आपको वोटर जिसको एनरोलमेंट करना है तो आप लोग प्लीज़ अप्रोच होइए वोटर्स हेल्पलाइन के थ्रू, या हमारा स्पेशल कैंपेन जब भी होता है आप अपने एरिया के पोलिंग स्टेशंस पे जाकर अपने BLO से ले सकते हैं, या आप लोग हमारा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस ERO ऑफिस फूल बाग 4th फ्लोर पर है, आप वहाँ पर भी आकर अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सिर्फ 2 फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा चाहिए बस, वो भी फॉर्म 6 के लिए। दूसरे के लिए फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म 6 के लिए 2 फ़ोटोज़ चाहिए अगर मैनुअल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ ECI, हमारे ERO साहब और हमारे सुपरिटेंडेंट इलेक्शन और माई सेल्फ AERO ऑफ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हुए इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए आप लोग।
हाँ, इस चैनल के ज़रिए आपको हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ECI। आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपना अपना एनरोलमेंट करा लीजिए ताकि डेमोक्रेसी शुड बी स्ट्रांग। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।